So hello my dear lovely students, I Samira Khan welcome you all in our today's class of environmental studies. So today we are going to study about third chapter of class 5th and the name of our chapter is From Tasting to Digesting. Taste करने से लेकर digest करने तक. Okay, so in this lesson we are going to talk a lot about different procedures which take place inside our body. Okay, in this lesson there are so many small stories which are very interesting, and in this lesson we are going to talk a lot about food items. Okay, so let's start this yum lesson and stay tuned. So from tasting to digesting, as I told you, this lesson starts with a small story of a small girl. Her name is Jhumpa. ये कहानी स्टार्ट हो रही है एक छोटी लड़की झुम्पा से, who ran towards her mother in the kitchen. Her mother was working something in the kitchen and she ran towards her and she said that Mama, I'm not going to eat this bitter gourd. I'm not going to eat this bitter karela. Please give me some jaggery and roti. झुम्पा अपने मम्मा के पास जाती है किचन में और वो क्या कहती है, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली हूँ. ओके, प्लीज मुझे थोड़ा सा गुड़ और रोटी दे दीजिए. तो उसकी मम्मा क्या कहती है, हर मम्मा टोल्ड हर दैट यू ईट शुगर एंड रोटी इन द मॉर्निंग. तुमने सुबह ही तो शक्कर और रोटी खाई थी. इतनी देर में उसकी सिस्टर, हर नेम इज झूलन, उसकी जो सिस्टर रहती है, शी टीज्ड हर एंड शी सेड, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ईटिंग ओनली वन काइंड ऑफ फूड. तुम एक तरीके का खाना खा खा के बोर नहीं हो जाती. तो इस पर झुम्पा क्विकली रिप्लाई करती है एंड शी सेड दैट डोंट यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली. क्या तुम इमली चाटने में, इमली खाने में कभी बोर होती हो? आई एम श्योर दैट योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग जस्ट बाय लिसनिंग द नेम इमली. तुम्हारे तो मुंह में पानी आ गया होगा इमली का नाम सुनते ही. तो उसकी सिस्टर बोलती है कि यस आई लाइक इमली, आई लाइक टैमरिन, बट I eat other things too. I eat sweet, salty and sour things too. मुझे इमली पसंद है बट मैं सॉल्टी भी खाती हूँ, मैं सौर भी, खट्टा भी खाती हूँ, मीठा भी खाती हूँ. एंड इवन आई ईट करेला टू, और तो और मैं करेला भी खाती हूँ. ये कहकर उसके मम्मा और उसके सिस्टर दोनों हंसने लगी. किसकी? झुम्पा की मम्मा और झुम्पा की सिस्टर मतलब झूलन, वो दोनों ये कहकर हंसने लगे. ओके, then Jhulan realized to teach Jhumpa a lesson about different food items. तो उसने क्या कहा अपनी सिस्टर से, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं. She blindfolded her and she told her that I would keep something in your mouth to eat and you have to tell me what it is. Okay, मैं खाने के लिए कुछ तुम्हारे मुंह में रखूंगी और तुम्हें बताना है कि क्या है. Before that she blindfolded her, मतलब उसने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी. Okay, so you can see as in this picture there are three girls, there are two girls and a lady. Okay, झुम्पा की मम्मा और there are two girls, झुम्पा and झूलन. Okay, तो झुम्पा के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है and झूलन gave her something to eat which she has to recognize just by its taste, मतलब without seeing that food item. Okay, so अब कैसे उन्होंने ये गेम खेला? At very first झुम्पा को सबसे पहले क्या दिया झूलन ने? She put some drops of lemon in a spoon and she gave that spoon to झुम्पा. Okay, she fed that spoon of lemon drops in झुम्पा's mouth and she asked her what it is. झुम्पा क्विकली रिप्लाइड इट इज सॉर लेमन. जैसे ही उसने लेमन की कुछ बूंदे उसके मुंह में डाली तो उसने जल्दी से पहचान लिया कि ये खट्टा सा लेमन है. ओके, आफ्टर दैट झूलन थॉट, अब मैं क्या उसे खिलाऊंगी? झूलन ने सोचा कि अब मैं उसे जैगरी खिलाऊंगी, दैट मीन्स गुड़ खिलाऊंगी. हर मदर सजेस्टेड दैट प्लीज crush it before giving it to झुम्पा, otherwise she would easily recognize it. उसे खिलाने के पहले उसे क्रश कर लो वरना वो इजीली समझ जाएगी. Why? Because jaggery is something which she loved to eat, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है ना. तो
As per her mother's advice, Jhulan ने क्या किया? She crushed that jaggery and then she gave it to Jhumpa. But Jhumpa easily recognized that it is jaggery. After that, Jhulan gave her some fried pieces of fish. But Jhumpa recognized that before eating that, before having that, Jhumpa ने चखने के पहले ही बता दिया कि ये फ्राइड फिश है. उसके बाद झूलन टोल्ड हर टू होल्ड हर नोज. ओके, उसने क्या कहा? तुम्हारी आंखें तो बंद ही है, अब तुम अपनी नाक भी बंद करो. शी टोल्ड हर टू होल्ड हर नोज एंड देन शी गेव हर अ स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला एंड शी आस्क्ड टेल मी व्हाट इट इज. तो झुम्पा ने कहा कि इट इज अ बिट बिटर, थोड़ा सा कड़वा है, सॉल्टी एंड सॉर, थोड़ा सा नमकीन है और खट्टा है. बट वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई. उसने कहा प्लीज गिव मी वन मोर स्पूनफुल. उसने कहा मुझे एक चम्मच और खिलाओ. झूलन ने एक और चम्मच लिया और उसे खिलाने के पहले उसकी आईज ओपन कर ली और फिर कहा नाउ टेक इट कुक्ड करेला, लो अब खाओ इस करेले को. और झुम्पा भी हंसते हंसते उसे खाने लगी और उसने कहा यस प्लीज गिव मी मोर, मुझे और दो. तो इस तरीके से उनका ये जो गेम था ये यहाँ पे खत्म हुआ. और एट द एंड ऑफ द गेम झूलन ने झुम्पा को ये रियलाइज करवा दिया कि बिटर करेला इज ऑल्सो गुड टू ईट. बिटर करेला जो होता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. बिटर गार्ड जो होता है इट इज नॉट दैट बिटर, है ना, ये इतना कड़वा भी नहीं होता है. ओके, सो इस तरीके का गेम इन दोनों सिस्टर्स ने खेला. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स फॉर यू टू डिस्कस एंड लर्न. अभी यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे. ओके, तो एज आई ऑलवेज सजेस्ट प्लीज टेक अ पेन एंड अ कॉपी विथ यू and try to note down what you think or what you feel. Okay, so Jhulan's mouth started watering when she heard the word इमली. इमली नाम सुन के उसकी जो सिस्टर थी झुम्पा की झूलन, उसके मुंह में पानी आ गया. When does your mouth water? ऐसे ही आपके मुंह में कब पानी आता है? Whenever we listen about the things which we like the most, whenever we talk about our favorite food items, that times our mouth waters, है ना, उस टाइम हमारा जो पानी मुंह है उसमें पानी आ जाता है जब हम हमारी फेवरेट फूड आइटम की बात करते हैं. ओके, सो व्हाट हियर दे आर सेइंग लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट. अभी आपको ऐसी 5 चीजें बताओ जिनका टेस्ट आपको पसंद है और उनका टेस्ट कैसा है आपको ये भी बताना है. सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन इट इन योर कॉपी अकॉर्डिंग टू यू. आपको क्या पसंद है ना, अभी आपकी और मेरी पसंद जरूरी तो नहीं है एक जैसी हो, अलग अलग होती है सबकी पसंद. सो यू हैव टू राइट डाउन योर चॉइस. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, व्हाट आर द 5 थिंग्स व्हिच आई इंक्लूड इन दिस लिस्ट? समोसा which has a spicy taste, ice cream sweet, chocolates sweet, pizza that is also spicy, and chocolate shake that is also sweet. Okay, these are 5 food items which I like very much. Okay, do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको एक ही तरीके का टेस्ट पसंद है या अलग अलग टेस्ट पसंद है? अगर ऐसा है तो क्यों, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? सो आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. ओके, मुझे अलग अलग टेस्ट पसंद है बिकॉज बाय सेम टेस्ट वी गेट बोर्ड ऑफ दैट फूड आइटम. अगर हम सेम टेस्ट करते रहेंगे तो एक टाइम बाद हम उस पर्टिकुलर फूड आइटम से बोर हो जाएंगे. ऐसा होता है ना कि हम अगर कोई एक चीज बार बार खाते रहते हैं फिर हम उससे बोर हो जाते हैं, फिर हम उसे बहुत दिनों तक नहीं खाते, और जब बहुत दिनों के बाद हम उसे फिर से खाते हैं तो हमें फिर से वो बहुत यम लगता है ना. नेक्स्ट, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पा's माउथ. झूलन ने लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स, थोड़ी सी लेमन जूस की बूंदे झुम्पा को झुम्पा के माउथ में दी. ओके, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? कुछ ड्रॉप्स से क्या हम उसका टेस्ट बता सकते हैं? Yes, of course, we can make out the taste with just a few drops of lemon because it is very sour. उसमें बहुत खट्टा होता है
तो हम few drops से ही recognize कर सकते हैं that whether it is lemon or not. Okay, if someone were to put a few seeds of salt on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how? अगर कोई सौंफ के कुछ दाने आपकी टंग पर रखे तो आप बिना उसे टेस्ट किए और बिना आईज ओपन किए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो क्या है? यस, आई इजिली रिकॉग्नाइज दैट थिंग बिकॉज आई लव द स्मेल ऑफ सौंफ. सौंफ की जो स्मेल होती है बहुत स्ट्रांग होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसकी स्मेल से ही बता सकती हूँ दैट इट इज सौंफ. ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? Okay, अब वो कहना है कि झुम्पा ने कैसे पता कर लिया फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए. क्या आप इस तरीके से कुछ किसी चीज को टेस्ट किए बिना देखे बिना बता सकते हैं? हाउ? यस, झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल. उसकी स्मेल से उसे पता चल गया कि इट इज अ फ्राइड फिश बिकॉज इट हैज अ वेरी डिफरेंट स्मेल, है ना, विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. इसी तरीके से देर आर सो मेनी फूड आइटम्स हुज स्मेल कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. जिनकी स्मेल हम आसानी से पहचान सकते हैं, तो उन्हें चखे बिना देखे बिना भी हम बता सकते हैं कि वो क्या है. जैसे कि ऑरेंजेस, संतरे आपने खाए हैं ना. संतरे जो होते हैं उनमें उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हम कभी फ्रूट मार्केट में जाते हैं तो संतरे की स्मेल हमें दूर से ही आ जाती है ना. ओके, सो ऑरेंजेस के अलावा ऑमलेट. ओके, ऑमलेट की भी स्मेल डिफरेंट होती है, उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ऑमलेट बन रहा है. ओके, सो देर आर सो मेनी फूड आइटम्स विच वी कैन रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल. आप जिनको पहचान सकते हैं आपको उन्हें अपने कॉपी में मेंशन करना है. ओके, हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या कभी आपको किसी ने कहा है अपनी नोज को होल्ड करने के लिए जब भी आप मेडिसिन लेते हैं? यस, माई मदर ऑलवेज एडवाइज मी टू होल्ड माई नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन. व्हाई? To avoid the smell of that medicine, जिससे मैं उस मेडिसिन की स्मेल अवॉइड कर सकूं. and it becomes easy for me to have that medicine. अगर उसकी स्मेल नहीं आएगी तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा उस मेडिसिन को खाना. That's why. Okay, next, close your eyes and tell. Now what you have to do, you have to close your eyes, collect a few food items having different kind of taste, play a game with your friends like Jhumpa and Jhulan did. Okay, अभी आपको क्या करना है? This is a kind of activity which you have to perform with your friends. जिसमें जैसे झूलन और झुम्पा ने जो गेम खेला था आपको वैसे ही खेलना है. मतलब किसी एक को ब्लाइंड फोल्डेड करना है और different food items देना है and that person has to recognize those food items. Okay, so you have to play this thing in your home along with your friends and mention the thing whatever you have experienced. क्यों बेटा? जब भी आप कोई एक्टिविटी खुद से करेंगे तो it would be better for you. क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को, है ना. कोई हमें बताता है तो हमें उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है, जब हम खुद परफॉर्म करते हैं तो जैसे आता है ना. सो प्लीज ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी. बाकी मैं आपको यहाँ पर उसको समझाती हूँ. ओके, तो अभी क्या हुआ कि कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स लिए और उन्हें एक ने आंखों पर पट्टी बांधी और उसे रिकॉग्नाइज किया. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वन कैन इजीली रिकॉग्नाइज. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी को ऑरेंज खिलाओ या उसको सूंघ कर उसकी स्मेल से ही वो रिकॉग्नाइज कर सकता है दैट इट इज एन ऑरेंज, है ना. सो on which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue? आपको सबसे ज्यादा टेस्ट किस पार्ट पर आता है? हमें सबसे ज्यादा जो टेस्ट आता है, we get the most taste on our tongue in front part, है ना. जो फ्रंट पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, यहाँ बहुत टेस्ट आता है. ज्यादातर हम जो भी चीज चखते हैं सबसे पहले यही रखते हैं, है ना, तो हमें टेस्ट यहीं पर आता है. ओके, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग?
Mark these parts on the picture given. Now you can see on the screen there is a picture of a boy with a tongue. Okay, अभी उसकी टंग पर हमें लेबलिंग करना है, हमें बताना है कि कौन सा टेस्ट हमारी टंग के किस पार्ट पर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रंट पार्ट, ओके, दीज आर लेफ्ट एंड राइट साइड्स पार्ट, है ना, दीज आर लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ अवर टर्न, एंड दिस इज द बैक पार्ट ऑफ अवर टंग। ओके, सो सबसे फ्रंट पार्ट पर हमें कौन सा टेस्ट आता है? वी गेट स्वीट टेस्ट एट फ्रंट ऑफ अवर टंग, ओके, एंड वी गेट sour and salty taste at the sides of our tongue, okay, and at the back portion of our tongue we get bitter taste, okay, is that clear? Okay, experience it once, तो आपको हमेशा याद रहेगा। One at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? अब वो क्या कह रहे हैं कि इन पार्ट्स को छोड़कर कुछ फूड आइटम्स आपको अपनी माउथ में अलग अलग पार्ट्स पर रखना है, जैसे टंग के अंदर, लिप्स पर, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। ओके, अब बताइए कि आपको वहां कोई टेस्ट आएगा? No, we did not get any taste there because of the absence of taste buds. वहाँ taste buds नहीं होती हैं। taste buds की हेल्प से ही हमें किसी चीज का टेस्ट मालूम होता है। ओके, so we did not get any taste out there. Okay, students. Now use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? अभी क्या करना है आपको? एक साफ कपड़े से अपनी जो टंग है उसके फ्रंट पार्ट को अच्छे से पोंछ लेना है कि वो सूख जाए। उसके बाद वहां कुछ शक्कर या गुड़ रखना है और अब बताना है कि क्या कोई टेस्ट आ रहा है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं आएगा। We could not taste anything. अभी why did this happen? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सलाइवा। हमने उस पार्ट को अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया, अच्छे से पोंछ लिया, वो ड्राई हो गया है ना, तो वहां पर सलाइवा प्रेजेंट नहीं है। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा मिक्सेस विद अवर फूड आइटम एंड मेक्स इट सॉफ्ट। ओके, वो उसे सॉफ्ट कर देता है और सलाइवा की हेल्प से ही टेस्ट बर्ड से हमें किसी भी फूड आइटम का टेस्ट पता चलता है। ओके, सो सलाइवा के एब्सेंस होने की वजह से हमें टेस्ट पता नहीं चल रहा है। ओके, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। अभी आपको मिरर के सामने खड़े होना है और अपनी टंग को पास से देखना है। आपकी टंग का सरफेस कैसे दिखता है? क्या आपको आपकी टंग पर कुछ टाइनी बम्प्स दिख रहे हैं? ओके, तो अब आप बताइए, जाइए देखिए मिरर के सामने आपकी टंग कैसा सरफेस है? इट हैज रफ सरफेस। रफ सरफेस होता है ना, स्मूथ नहीं होता है। एंड यस, वी कैन सी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ अवर टंग एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, टाइनी बम्प्स होते हैं छोटे छोटे से। ओके, और हमारी जो टंग है उसका सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ना चल अभी आपको बताना है, क्या बताना है? If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. अगर कोई आपसे आंवला या क्यूकम्बर का टेस्ट पूछेगा तो हो सकता है आपको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। How would you describe the taste of these? अब आप इनका टेस्ट कैसे बताएंगे? टोमेटो, अनियन, सौंफ एंड गार्लिक। ओके, तो अब आपको बताना है टोमेटो का टेस्ट आप कैसे बताएंगे? टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है? हैव यू एवर टेस्टेड टोमेटो? यू शुड टेस्ट इट, है ना, आपको टोमेटो खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है। ओके, तो टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है टोमेटो, मीठा होता है और थोड़ा सा खट्टा भी होता है ना, स्वीट एंड सॉर। ओके, अभी मुझे बताइए अनियन। अनियन आपने टेस्ट किया होगा सैलेड में, सैलेड खाते हैं उसमें अनियन भी रहता है ना, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सबको पसंद नहीं आता है। इट हैज अ पंजेंट टेस्ट। ओके, ओके, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन
अ लिटिल बिट काइंड ऑफ बिटर, है ना, तो ये पंजेंट टेस्ट होता है। सौंफ, सौंफ का टेस्ट कैसा होता है? सौंफ का टेस्ट स्वीट होता है ना, मीठी मीठी लगती है हमें सौंफ। एंड गार्लिक, गार्लिक का टेस्ट भी पंजेंट होता है। ओके, एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ स्मेल। ओके, इट इज द नेम ऑफ अ स्मेल, बट उसका टेस्ट भी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ दिस। ओके, think of the words that you know or make up your own words to describe the taste। अभी आपको क्या करना है, अपने मन से कुछ चीजों का टेस्ट के बारे में बताना है, कुछ वर्ड्स आपको बताने हैं जिनसे आप किसी पर्टिकुलर चीज का टेस्ट डिस्क्राइब कर सकें। जैसे अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, आप बहुत सारे वर्ड्स अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे इफ राइट नाउ आई विल से, हम बहुत सारी चीजों में यम बोलते हैं, कुछ हम खाते तो हमें बहुत मजा आ जाता है, यम, इस तरीके से हम बोलते हैं। कब? जब हम कुछ बहुत हमारी स्वीट डिशेस खाते हैं, जैसे कि अगर हम आइसक्रीम खाते रहते हैं या चॉकलेट खाते हैं तो उस टाइम, है ना, वी से यम। और हम क्या करते हैं, स्लर्प, आपने सुना है कभी स्लर्पिंग? ओके, स्लर्प कब करते हैं हम ऐसे? when we are having coffee or when we are having a soup or when we are having noodles, okay, that time we make out this type of sound, slurp. Okay, so you have to tell the sound produced by you while having different food items. Okay students, now when Jhumpa tasted some of the things, she said, ओके, सो व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? उसने क्या खाया होगा? हम ऐसा कब करते हैं, जब हमें बहुत तेज मिर्ची लगती है या हम कुछ बहुत गरम गरम खा लेते हैं ना, तो शी माइट हैव ईटन समथिंग वेरी स्पाइसी और हॉट। ओके, व्हाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? अभी हमने कुछ साउंड्स बताए, है ना, जैसे स्लर्प या फिर यम, ये कुछ डिफरेंट साउंड्स है जिससे हम किसी टेस्ट को बता सकते हैं। ओके, from your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. Now this is a very interesting activity which you have to do. आपको क्या करना है, कोई चीज खाना है और उसका जो साउंड है, आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस साउंड से आपके फ्रेंड को बताना है कि आपने क्या फूड आइटम खाया है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपको जरूर करना चाहिए। ये दोनों तरफ से आपको फायदा देगी, एक तो आपको कुछ यम यम खाने को भी मिल जाएगा एक्टिविटी के नाम पे, एंड द सेकेंड थिंग कि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो यू गेट टू नो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस, है ना, व्हाइल वी आर हैविंग डिफरेंट फूड आइटम्स। ओके, सो chew it or chew it well. What's the difference? Now in the slide you can see a ma'am who is chewing very well. वो बहुत अच्छे से chew करके खा रहे हैं, है ना। तो अभी क्या डिफरेंस है chew it and chew it well? चबाओ या अच्छे से चबाओ। चलिए पढ़ते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, या तो कुछ राइस लीजिए या रोटी या ब्रेड, कुछ भी। ओके, पुट इट इन योर माउथ, उसे अपने मुंह में रखिए और उसे चीव करिए, कितनी बार? 3 to 4 टाइम्स, एंड देन स्वेलो इट, फिर उसे निगल जाइए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या टेस्ट में कुछ चेंज आया आपने जब चीव किया तो? नहीं, टेस्ट में कुछ खास चेंज नहीं आया। व्हाई? बिकॉज वी च्यूड इट ओनली 3 to 4 टाइम्स, क्योंकि हमने उस फूड आइटम को सिर्फ 3 से 4 बार किया, इसलिए उसके टेस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं आया। ओके, नाउ टेक अनदर पीस ऑफ और सम राइस एंड chew it 30 to 32 टाइम्स। अब आप फिर से कुछ कुक्ड राइस लीजिए, उसे अब खाइए और उसे कितनी बार च्यू कीजिए? 30 to 32 टाइम्स, 30 से 32 बार उसे च्यू करिए। Was there any change in the taste after chewing so many times? इतनी बार च्यू करने पर क्या उसके टेस्ट में कुछ फर्क आया? Yes, it becomes soft and sweet. जब आप बहुत बार किसी चीज को च्यू करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ा स्वीट टेस्ट हो जाएगा उसका। ओके, एंड यू विल फाइंड वेरी इजी टू स्वेलो दैट थिंग। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से चबाते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हमें निगलने में कोई परेशानी नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी चीज को अच्छे से च्यू नहीं करते हैं और जब हम उसे स्वेलो करेंगे तो वी विल फाइंड डिफिकल्टी टू स्वेलो इट, हमें उसे अंदर निगलने में कुछ परेशानी होगी। ओके,
Now discuss. There are so many things which we have to discuss in this chapter, as I told you. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? अभी वो क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको घर पर कोई बोलता है कि धीरे धीरे खाओ और अच्छे से च्यू करो जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा? Okay, yes, my mother always advised me to eat slowly and to chew well. उससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है. क्यों? आपको पता है डाइजेशन बिगिंस एट माउथ. जो डाइजेशन होता है ना वो माउथ से ही बिगिन हो जाता है. अगर हम हमारे फूड आइटम को अच्छे से च्यू करेंगे, इट गेट्स मिक्सेस विद सलाइवा. सलाइवा से वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, and then it will be very easy for us to swallow it. और उसे हमें निकलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है. ओके, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा. आप एक ग्रीन गुआवा जाम खा रहे हैं. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? When we eat it first, it is hard. वो hard होता है. Hard होने के साथ साथ हमें वो थोड़ा सा बिटर भी लगता है. ओके, बट वेन वी च्यू इट वेल, हम उसे जब अच्छे से च्यू करते हैं, इट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्वीट. वो सॉफ्ट हो जाता है और वो बहुत स्वीट टेस्ट आने लगता है हमें उसका. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन च्यू एंड च्यू इट वेल. ओके, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू. अभी बताइए कि हमारे माउथ में सलाइवा क्या करती है. सलाइवा क्या करती है? सलाइवा मिक्सेस विद अ फूड एंड मेक इट सॉफ्ट. वो हमें हमारे जो फूड आइटम होता है उससे मिक्स हो जाती है और उसे बहुत सॉफ्ट बना लेती है. इसकी वजह से क्या होता है, इट वुड बी इजी फॉर अ फूड टू गेट डाइजेस्टेड. इससे हमारा जो फूड है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. इसीलिए आपको कहा जाता है कि हमेशा खाना अच्छे से चबा चबा कर च्यू कर ही खाना चाहिए. हम ज्यादातर जब टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं या जल्दी जल्दी खाते हैं, हम प्रॉपरली खाना च्यू नहीं करते, ऐसे ही खा लेते हैं ना. दैट इज अ रॉन्ग हैबिट. ओके, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर स्टमक, पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट. अब बताइए खाना कहाँ जाता है? जब आप उसे मुंह में रख के निगलते हैं उसके बाद खाना जाता कहाँ है? इस पिक्चर में आपको क्या करना है, आपको पाथ ड्रॉ करना है आपके फूड का. आपकी बॉडी से होते हुए, कहाँ से होते हुए फूड कहाँ जा रहा है, आपको इसका पाथ ड्रॉ करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. चेक इट, सबकी जो पिक्चर्स हैं सबने सेम बनाया है या अलग अलग बनाया है. ओके, तो चलिए हम ट्राई करते हैं. दिस इज द माउथ. माउथ में वो च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीथ. टीथ से च्यू करने के बाद वो स्वेलो करते हैं, निकलते हैं. तो कहाँ पर जाता है खाना? इस तरीके से फूड पाइप होता है. डू यू नो? फूड पाइप होता है. फूड पाइप में खाना जाता है और वो कहाँ जाता है? हमारी स्टमक में जाता है. ओके, खाना कहाँ जाता है? हमारी स्टमक में. उसके बाद आपको पता है यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है. वंस यू विल गो टू हायर क्लासेस, आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको इसकी प्रोसीजर पता होनी चाहिए. ओके, तो इट्स लाइक दिस. ओके, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्रॉइंग बट इट वुड बी ग्रेट इनफ टू अंडरस्टैंड. ओके, सो फूड आइटम से हमारा जो फूड है वो स्टमक में जाता है. स्टमक से जो फूड है हमारा वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वो एनस के थ्रू जो फूड आइटम है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है फूड का, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट बचा है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है. ओके, so it's a request for all of you, when you draw it in your copy, please draw it well. Okay, unlike me. So discuss, how do you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I'm so hungry that I could eat an elephant.
अभी बताना है आपको कि आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं जब आप बहुत हंग्री होते हैं। आप कैसे इस बात को डिस्क्राइब करेंगे? जैसे कभी कभी जब हम बहुत भूखे होते हैं तो कोई कहता है ना कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक हाथी खा सकता हूँ। अभी क्या कोई इंसान हाथी खा सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बट हम ये क्यों कहते हैं? हम ये बताने के लिए कहते हैं कि हमें कितनी ज्यादा भूख लग रही है। ओके, सो इसी तरीके से आप किस तरीके से बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा हंग्री हैं? है ना, यू हैव टू से दैट आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट रेड, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। इस तरीके से आप भी कुछ कुछ डिफरेंट बातें कहते होंगे, तो यू हैव टू से। ओके, अभी मुझे आप ये बताइए, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आप हंग्री होते तो आप कैसा फील करते हैं? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई फील वेरी 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 वीक व्हेन आई एम हंग्री। अगर मैं बहुत हंग्री हूं तो मैं बहुत वीक फील करने लगूंगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंसंट्रेट ऑन एनी ऑफ माई वर्क। अगर मैं भूखी हूँ, इफ आई एम हंग्री, देन आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, मैं किसी भी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती हूँ। एंड आई फील दैट आई एम सिक, ऐसा मुझे लगेगा जैसे मैं बीमार हूँ। ओके, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कब पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा भूखे हो? When I have a strong urge to have something, जब मुझे बहुत ज्यादा ऐसी किसी चीज की डिजायर होती है कुछ खाने की, तब मुझे पता चलता है कि मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ। ओके, आप सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होंगे स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट योर ओपिनियंस इन योर कॉपी। ओके, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, तो हर किसी की फीलिंग्स, हर किसी के वर्ड्स, सब कुछ डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंटली ही लिखना है। ओके, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाओ तो आप कैसे फील करोगे? इफ आई वुड नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, आई फील सिक, है ना। आई फील दैट आई एम इल, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूँ ना। इट वुड नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वॉक प्रॉपरली, टू टॉक प्रॉपरली, टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं अच्छे से ना खा पाऊंगी, ना चल पाऊंगी, ना बात कर पाऊंगी, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा वीक फील करूंगी। ओके, नाउ वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? क्या आप 2 दिन तक बिना पानी पिए मैनेज कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू मैनेज फॉर 2 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज water is very important for our body to perform so many metabolic activities। बहुत सारी metabolic activities जो हमारी बॉडी में होती है उसके लिए पानी बहुत जरूरी है ना। अगर हम 2 दिन तक पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है सरवाइव करना 2 दिन तक। ओके, सो आपको पता है ये जो पानी हम पीते हैं ये कहाँ जाता है? पानी जो हम पीते हैं, इट गोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के रूप में या फिर यूरिन के रूप में ये पानी हमारी बॉडी से निकल जाता है। ओके, नाउ देयर आर सो मेनी स्मॉल किड्स, वो सब अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। जैसे कि दिस गर्ल, व्हाट शी इज सेइंग, व्हेन आई एम हंग्री माय हेड एक्स, मेरा सिर दर्द करने लगता है जब मुझे भूख लगती है। दिस बॉय इज सेइंग, आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। This kid is saying, when I am hungry, I feel tired, मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ जब मुझे भूख लगती है। This girl is saying, when my sister is hungry, she cries। वो क्या कह रही है? उसकी छोटी सी बहन उसकी गोद में है, वो कह रही है कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वो रोने लगती है। ऑब्वियसली एक बहुत छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो कैसे बताएगा कि उसे भूख लग रही है? वो रो कर बताता है ना। जब वो रोता है तो उसकी माँ को ये समझ में आ जाता है कि माई किड इज हंग्री, उसे भूख लग रही है। नाउ दिस puppy, what it is saying, it is saying I cry too when I am hungry। वो पपी कह रहा है कि मुझे भी जब भूख लगती है तो मैं भी रोने लगता हूँ, है ना। वो एनिमल है तो वो भी बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लग रही है, तो वो क्या करता है? इट स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लगता है। तो उस तरह से पता चल जाता है कि उसे भूख लग रही है। ओके, सो हर जो बच्चा होता है उसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वो ये बात बताता है कि मुझे भूख लग रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। ओके, अब क्या हुआ?
there is a girl you can see in this picture. Okay, there is a girl, her name is Neetu and glucose drip is given to that girl. Okay, उसे glucose drip दी जाती है. Okay, so why? Actually Neetu was suffering from loose motions and vomiting. उसे बहुत ज्यादा loose motion और vomiting हो रहे थे. Whatever she ate, she vomits. उसे वो जो भी खाती थी वो vomit करके निकाल देती थी. Okay, her father gave her a solution of sugar and salt in water. उसके पापा ने उसे शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन दिया, बट उसके बाद स्टिल शी वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड शी फेंटेड. वो चक्कर खा के गिर गई. देन शी वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. ओके, वहां पर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर सेड दैट शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. उसे ग्लूकोज ड्रिप देने की जरूरत है. अब ये सुनकर नीतू सोचने लगी कि उसने स्कूल टाइम में ग्लूकोज के बारे में तो सुना है, ग्लूकोज ड्रिंक के बारे में. ओके, बट व्हाट इज दिस ग्लूकोज ड्रिप? ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है ये तो उसे पता ही नहीं है. ओके, तो डॉक्टर उसे समझाते हैं दैट योर स्टमक इज अपसेट. ओके, अभी आपकी जो बॉडी है इट इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. वो कोई भी पानी या खाना अपनी स्टमक में आपकी बॉडी नहीं रख पा रही है. उस वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है आपकी बॉडी. तो ग्लूकोज ड्रिप क्या करेगी? ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ. वो आपको थोड़ी ताकत देगी. जल्दी से आपको थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी जो बिना खाए मिल रही है. मतलब आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो तो वोमिट हो जा रहा है. ग्लूकोज ड्रिप से आपको बिना खाए ही थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी और उससे आप जल्दी रिकवर कर पाओगे. ओके, नाउ you again we have to talk and discuss. There's a lot about talk. So have you heard the word glucose or seen it written anywhere? क्या आपने glucose word सुना है? Yes, we have heard the word glucose and we have seen written it on the packet of glucose. Glucose के पैकेट रहते हैं. We have that in our home. उस पे आपने बिल्कुल देखा होगा glucose लिखा हुआ. Have you ever tasted? Yes, I have tasted it. हाउ डज इट टेस्ट? उसका टेस्ट कैसा होता है? इट टेस्ट स्वीट. उसका टेस्ट स्वीट होता है. ओके, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? आपकी फैमिली में या आपको कभी ग्लूकोज ड्रिप लगी है? व्हेन एंड व्हाई? कब और क्यों? यस, माय सिस्टर, उसे ग्लूकोज ड्रिप लगी है. माय सिस्टर, शी हैड बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. व्हाई? बिकॉज शी वॉज फीलिंग सिक, शी वॉज वॉमिटिंग and she had loose motions. That time doctor told us that she needs to be given a glucose drip. Why? Because she was very weak, because it was not possible for her to keep something in her body, so they gave her glucose drip. उससे क्या होता? उसे एनर्जी मिल जाती without eating anything. Okay, Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? अभी नीतू की जो टीचर थी वो गर्ल्स को क्यों कहती थी कि हॉकी खेलते टाइम आप सब ग्लूकोज लीजिए? वाई? ग्लूकोज क्या होता है एक्चुअली में? इट इज ऑल्सो सोल्यूशन इन वाटर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, है ना. तो उससे क्या होता है कि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर का वाटर है वो बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. और जब बॉडी के अंदर का पानी खत्म हो जाता है तो वी स्टार्टेड फीलिंग वीक. हम कमजोर महसूस करने लगते हैं. दैट टाइम ग्लूकोज पाउडर क्या करता है? ग्लूकोज क्या करता है? इट रिप्लेनिश द लॉस ऑफ वाटर. वो जो हमारी बॉडी में पानी की कमी हुई है वो उसकी पूर्ति कर देता है. एंड वी स्टार्ट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, और हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं. ओके, नाउ लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? अभी नीतू की जो पिक्चर थी वो आपको फिर से देखनी और बताना है कि उसे ग्लूकोज ड्रिप किस तरीके से दी जा रही है. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ स्टैंड, अ बॉटल इज हैंगिंग हियर. द बॉटल इज फिल्ड विथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज बीइंग गिवन टू नीतू इन द फॉर्म ऑफ नीडल, है ना. नीडल के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर वो जो ग्लूकोज है जो बॉटल में है, जो हैंगिंग है उस बॉटल में एक स्टैंड पर, वो उसे दिया जा रहा है. ओके, so now let's read this interesting poem, Martin's Window.
Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could write peep in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. So now let's read its Hindi translation. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से लगी पेट में गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल, बात जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब मन चाहे तब अंदर झांक ले, अंदर के सारे हाल भाप ले, क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे यमीन मेक भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, अंदर नया खाना डाल सकते थे, हाँ दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की, कहानी ये हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी, पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। ओके, सो इस पोयम से आपको क्या समझ में आया? एक्चुअली दिस इज poem is about a soldier whose name was Martin. Okay, तो अब क्या होता है, एक वॉर होता है, उस टाइम मार्टिन कितना बड़ा रहता है, ही वॉज ओनली 18 years old। उस टाइम उसे एक गोली लग जाती है, तो डॉक्टर ब्योमोट, ओके, उन्हें बुलाया जाता है उसे ट्रीट करने के लिए, तो वो उसका इलाज करते हैं, ही क्लीन हिज वाउंड एंड उसे वो ड्रेसिंग करते हैं, उसके बाद वो स्लोली हील होने लगती है। आफ्टर 1.5 year जब वो उसे चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि जो उसकी वाउंड थी इट स्टार्टेड हीलिंग। ओके, बट क्या देखा उन्होंने कि एक्चुअली जो उसकी वाउंड थी वहां पर क्या हुआ था, एक छोटा सा होल हो गया था, एंड दैट होल वाज कवर्ड विद अ फ्लैप ऑफ स्किन। ओके, जो होल था वो अब स्किन के फ्लैप से कवर्ड था, उस पे अगर आप यू कुड पीप इन एंड यू कैन सी समथिंग इनसाइड द स्टमक ऑफ मार्टिन, आप मार्टिन के स्टमक के अंदर देख सकते थे। इवन यू कैन टेक आउट फूड फ्रॉम हिज स्टमक, आप उसकी स्टमक से फूड भी निकाल सकते थे। तो डॉक्टर ब्योमोंट को क्या लगा, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक ट्रेजर मिल गया। क्यों उन्हें ऐसा लगा? बिकॉज दैट टाइम इट वॉज नॉट क्लियर फॉर डॉक्टर्स हाउ अ फूड गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड अवर बॉडी। हमारा जो फूड है वो बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है, इसके कुछ भी तरीके की कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के पास नहीं थी। तो मार्टिन की वजह से डॉक्टर को क्या मिला, एक खजाना मिल गया था जिसमें वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स। ओके, तो अब क्या करने लगे डॉक्टर ब्योमोंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने लगे मार्टिन के ऊपर। ओके, अब उन्होंने क्या किया, वंस उन्होंने एक बार कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ जो हमारे जो सिस्टम स्टमक के अंदर जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस जिसे बोलते हैं, ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम मार्टिन स्टमक, उन्होंने मार्टिन के स्टमक से कुछ डाइजेस्टिव जूस बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने क्या किया, ही पुट some 20 fried fish pieces, 20 pieces of fried fish in 10 milliliter of that water। कौन सा water? That digestive juice। उसके अंदर he took that water in a glass, in that glass he put 20 pieces of fried fish। Okay, at what time? At 8:30 AM in the morning। Okay, and then he observed it। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया that at 2 o'clock in the afternoon that pieces dissolved in that digestive juice। वो digestive juice में वो जो pieces थे fish के वो dissolve हो गए थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, he started doing this experiment with different food items। उन्होंने different food items के साथ ये experiment करना शुरू कर दिया। ओके, अब उन्होंने क्या किया, every time he
gave same thing to eat to Martin. उन्होंने मार्टिन को वही चीज खाने के लिए दी और उन्होंने वही चीज in that glass जिसमें डाइजेस्टिव जूस था उसके अंदर वही चीज उन्होंने रखी. एंड देन ही ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, दैट डाइजेशन फास्टर कहाँ हो रहा है, फास्टर डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मार्टिन स्टमक और आउटसाइड मार्टिन स्टमक. ये उन्होंने ऑब्जर्व किया. ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कब तक किए, 9 ईयर्स तक उन्होंने करे. तब तक मार्टिन बड़ा हो गया था, उसकी शादी भी हो चुकी थी, ही गॉट मैरिड. ओके, तब तक वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ फूड आइटम्स लिए जिससे, जैसे मैंने कहा था, इन द स्टमक उन्होंने देखा कितना टाइम लग रहा है डाइजेशन होने में, और आउटसाइड द स्टमक मतलब उस ग्लास के अंदर वो उस फूड आइटम को डालते थे जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस थे जो उन्होंने मार्टिन की स्टमक से ही निकाले थे. अब इन दोनों जगह पर उस फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लग रहा है. तो अनबॉइल्ड एग्स स्टमक में 2 hours 15 minutes, in the glass 4 hours 45 minutes. Boiled milk 2 hours in the stomach, 4 hours 15 minutes outside the stomach. Full boiled egg 3 hours 30 minutes inside the stomach, 8 hours outside the stomach. Half boiled egg 3 hours inside the stomach, 6 hours 30 minutes outside the stomach. Raw egg beat किया हुआ raw egg 2 hours inside the stomach, 4 hours and 15 minutes outside the stomach. And raw egg कच्चा अंडा 1 hour 30 minutes inside the stomach of Martin and 4 hours outside the stomach of Martin in that glass filled with digestive juice. तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. फूड स्टमक में ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड. हमारा जो स्टमक है वो फूड को चर्न करती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए. ओके, अब उन्होंने एक और क्या बात नोटिस की थी कि जब मार्टिन सैड रहता था दैट टाइम फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली. अगर हम सैड होते हैं ना तो हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है. सो वी शुड बी हैप्पी ऑलवेज. ओके, एंड द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक. हमारी स्टमक में जो जूस होता है वो एसिडिक होता है, उसी की वजह से फूड डाइजेस्ट होता है. ओके, these were some of the observations which Dr. Beaumont did. Okay, now imagine if you had been in the place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. तो अभी आपको अपने मन से लिखना है कि अगर आप डॉक्टर की जगह होते तो आप क्या करते. If I had been in the place of Dr. Beaumont, तो मैं क्या करती, I would have done different experiments with different food items like khichdi and roti. I would have placed these things in that glass filled with digestive juice and I would have given these food items to Martin to eat, and then I would have checked that whether they are digested in the stomach or they are digested in the outside the stomach in that glass of water. And I would have noticed and I would have write down all these observations in a table. और फिर मैं भी इसी तरीके से कुछ conclusions निकालती. Okay, now good food, good health. Okay, now here's a picture of a girl. Her name is Rashmi. She is 5 years old but she looks like 3 years old. वो 5 साल की है पर वो अपनी उम्र से कम दिखती है. She has very thin arms and legs. उसके हाथ पैर बहुत ही दुबले पतले हैं. And a pot belly. मतलब उसकी जो स्टमक है वो कैसी है, it looks like a balloon. Okay. She often falls sick. वो बहुत बीमार पड़ती है. वो हमेशा बहुत कमजोर लगती है, थकी थकी सी लगती है. रोज स्कूल भी नहीं जा पाती है वो, और उसके पास इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो खेल सके. ओके, अभी फूड क्या है, वो क्या फूड खाती है रोज, तो शी इज वेरी लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. वो अपने आप को बहुत लकी मानती है अगर उसे दिन भर में 1 रोटी या थोड़े से चावल खाने को मिल जाए तो भी. ओके, अब हम यही बात करेंगे अबाउट अ बॉय हुज नेम इज कैलाश. ही इज 7 years old बट वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता है. उसकी बॉडी बहुत फैट और फ्लैबी है. उसे हमेशा पैरों में दर्द रहता है. वो बहुत एक्टिव नहीं है. वो स्कूल जाता है बस से और ज्यादातर टाइम वो टीवी देखता रहता है. अब उसके फूड में क्या क्या इंक्लूड है, उसे घर का खाना, कुक्ड खाना अच्छा नहीं लगता, जैसे दाल, राइस, वेजिटेबल्स, रोटी.
उसे क्या पसंद है, चिप्स, बर्गर्स, पिज्जा, जंक फूड जो होता है ना, उसे वो पसंद है। ओके, तो ही लुक्स लाइक दिस। ओके, अभी आपने दो बच्चों के बारे में पढ़ा। अब ये दोनों एक्चुअली डॉक्टर अपर्णा के पेशेंट्स हैं। ओके, तो डॉक्टर अपर्णा ने इनकी हाइट और वेट मेजर किया और उसने जो डॉक्टर है उन्होंने दोनों बच्चों को क्या कहा, दोनों की सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज प्रॉपर फूड। अब मुझे बताइए, एक लड़की रश्मि जिसके बारे में हमने पढ़ा कि उसे अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा मिल जाए वही खा लेती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश, जिसे घर का खाना पसंद नहीं पर वो बाहर का खाना बहुत खाता है। तो डॉक्टर ने दोनों को सेम ट्रीटमेंट क्यों कहा, प्रॉपर फूड क्यों कहा? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर फूड? आप प्रॉपर फूड से समझते क्या है? उसके पहले चलिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, देन आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका जो खाना है वो प्रॉपर नहीं है? बिकॉज रश्मि को तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड ही नहीं मिल पा रहा है, वो उसकी भूख से कम खा रही है, और कैलाश इम्प्रॉपर फूड खा रहा है जिसमें किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं है, बिकॉज ही ऑलवेज ईट जंक फूड, है ना, वो जंक फूड खाता है जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज नहीं होती है। ओके, नाउ find out, talk with your parents, grandparents or elderly people and find out what they ate and what they worked when they were of your age. Now think about yourself, your daily activities and diet. क्या ये सिमिलर है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एक्टिविटीज से और डाइट से? ओके, सो व्हेन आई टॉक टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, my grandparents, they ate rice, roti, dal and fruits, green vegetables in their diet. They included all these things in their diet. Other than that, they went to their school by walking or by cycling. They always helped their parents in their work in kitchen or in the fields. They always played a lot of physical games, outdoor games. Okay, so that's why still they are very strong. They are able to walk properly, to go out for a walk, and they are very healthy right now also. But if I'm talking about kids, आजकल के जो बच्चे हैं, they always have, although they eat all these things, although they eat dal, rice and each and everything like that, but along with this they eat junk food also. They drink soft drinks, they eat pizza, burgers every day, है ना? Other than that, they go to school by school bus. They very rarely they perform any physical activity. They never help their parents in kitchen, and they spend most of their time ऑन सोफा वॉचिंग टेलीविजन, इजंट इट? यही है ना आपकी डेली एक्टिविटी? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यही है तो प्लीज ट्राई टू चेंज इट। ओके, अदरवाइज आप अभी से बहुत वीक फील करेंगे। प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट। क्या आपको पता है कि हर बच्चे का हक है कि उसे प्रॉपर फूड मिलना चाहिए? अभी हमने दो बच्चों के बारे में पढ़ा, वन इज कैलाश जिसे होममेड कुक्ड फूड पसंद नहीं है, और दूसरी रश्मि जिसे प्रॉपर फूड ही नहीं मिल पाता है बिकॉज शी वॉज टू पुअर। ओके, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। क्या आपको पता है हमारी कंट्री में आधे से ज्यादा बच्चे रश्मि की तरह हैं? उन्हें दिन भर में प्रॉपर फूड ही नहीं मिल पाता, इस वजह से वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, अक्सर वो बीमार ही रहते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। बट डू यू नो दैट प्रॉपर फूड इज राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन? हर बच्चे का हक है ये। ओके, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स अ सोसाइटी की, अगर हमें इस तरीके के लोग या बच्चे कहीं दिखते हैं तो वी शुड फीड देम, हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। ओके, अबाउट गोमती, नाउ हेre's a picture of a lady, her name is गोमती, she is 30 years old, she works in a field of a rich farmer. वो एक बहुत रिच फार्मर के खेत में काम करती हैं, बट उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। ओके, कभी कभी कुछ साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, उसकी जो बच्चे हैं वो बहुत कमजोर हैं, हमेशा भूखे रहते हैं और बीमार रहते हैं। कुछ साल पहले उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अब ये सब आपने पढ़ा गोमती के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोमती एक फार्मर के फील्ड पर काम करती है, जहाँ पे वो चावल के खेत में काम करती है। और गोमती कहाँ रहती है? गोमती
लिव्स इन ओडिशा इन कालाहांडी। अब आपको पता है ज्यादातर जो चावल होते हैं वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही ग्रो करते हैं। वहां से बहुत सारे राइस है जो दूसरे स्टेट्स में भेजे जाते हैं क्योंकि वो वहां बहुत बल्क में ग्रो होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गोदाउन में पड़े पड़े बहुत सारा अनाज जो है वो खराब भी हो जाता है। उसी कालाहांडी में जहां पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चावल उगाए जाते हैं, वहीं पर बहुत सारे गरीब लोग हैं गोमती की तरह, जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है और वो भूख से मर जाते हैं। सोचिए आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री हु डाई ऑफ हंगर, जो भूख से मर जाते हैं। इजंट इट अ शेमफुल थिंग फॉर अस? हमारे लिए क्या ये कोई शर्मनाक बात नहीं है? हम जो इतना खाना वेस्ट करते हैं, होता है हमारे घरों में, हम ही हमेशा हमारी प्लेट कभी हम कंप्लीट उसको हमारा खाना फिनिश नहीं करते हैं, हमेशा हम खाना फेंक देते हैं, है ना? तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे? क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो दिन भर में प्रॉपर खाना नहीं खा पाता है? अगर जानते हैं उसके क्या कारण होते हैं? यस, आई नो देर आर सम किड्स who do not get enough food to eat. They live in slum areas, and the reason is they are very poor. That's why it is not possible for them to eat proper food. Have you ever seen a godown where a lot of grains has been stored? क्या आपने ऐसे कोई गोडाउन देखे हैं? Yes, in अनाज मंडी I have seen there are so many godowns which are filled with grains. Okay, sometimes क्या होता है जो grain उसमें है वो spoil भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है ना? It's better if they distribute this thing to poor people, है ना? Is that correct? Okay, so thank you students, have a nice day.